हिरुंगा नुनु मांग की दो लोग हैं आगे के लिए मुझे एक ही चीज़ है तो को मैं ओ मैडम का एक लोग है मैडम का आजन बिल्डिंग है ना मुझे निमी मैडम और चंपा मैडम और nun ka naru hero ke mera ki kali na tur naru alu ka mera na me patra merma ko jo no ho ka am par mun dakit ma kai agan ne na no mun ma jiru la ka mun ka anya me de ritwa pura hi kunam me ngun jin dolo ni ritru tu ko hi me ka mera no mun lok so me lok durik ma ka mun ma dru la ka mera no ma ko na o andar la lo buda pir hok inda devi ja de la len ja ga bang cili dulu ke, aja bawa ane mang, kari kita tu kelam aku je mang, macam mun ke bang cili kalau kalau naru mekin tu, medam no alu nago, munu medam no naru kadu, mani kenji ke Delhi kalo, nak yatra itu ke kali lagi, naru mun kangat kali lah, mun are medam ada nani kom, naru nom kalu tu, orang mehrum nasi nom dan beradi kita mun mekin tu, medam ini kapu naru mai buda opla ko. मेरा लोग हिरो का आलिक जिनमें मुन मजाक मैकेन दूर है वाला मुन मेगो मेरा आगम जाता है बेपार करा नोक समय में तो ही नोक आलिक जिमुन नम्मे से 5 मिनट लगा बचिन आई नम्मे मजाक वालो एम नोरेन कोई ने क्या बोल लेना हम बे नो भूत को वे इन्ला भाई एम ना का मोस्ट वर्ड ऑफ थैंक्स एंड सिंग और जापिन डालना Thank you. Asigo ko palu do. Oko mem, okay, Nimika mem, okay. Mono higi, hirunga alina laka. Acha boka te chin, akina kene, alik sopo ye hirum alik lama laka. Mono, ayke baraloran la isi alik, hoge etin lama doron me, anye megate ka agam tu. Okay, nung me oka, acha boka aja bolum ber, anye megla tu me oka hi. Acikat gaya, mertuno ka di acikat gaya, nyampe ka di kau kat gaya, mulu ka anya hobe, nyubo ke, hamdan na, everyman, somai ka manam lega pa mulu isi, ya akin doi no mamosa kar me ka de na bila pachin, ega hi ke yo pai somai bani ke jin dimaram, somai ta biru mare ta ke bila isi, mulu. Mungkin naru ke berbeda dunia kali nama macam ada yang tempat tu lah ayat ke pemor selah ane hendak ane mego ambil ayat ke pemor itu lagi ke amla pura all macam hobi ko all yang destin level pura kapat apa nama medam sobai kamar ukro male medam ni siden ado mela anigo mune doi lu bawa ina kai medam na tadi mula Thank you, Achi. A very good evening to all of you. Abo most respected abo gede, oke ngoga ane gede, oke ngoga anyam ajin gede. Nunu amo, thank you so much ala kumlet gena. Kojo jo nun ready to klangom karik de bela torala dun bongam. Anyi go nye ada go ne aach maatna. Tol tirbin le kalam anyam gede ready to klang. Rasta te ponu il dak nam ale hech doel ko kami. Basar bos ke mo emergency bajukda jogra jognama. Nunam anyi godora to he. Nun gare dirato mo ijatol ke ikurtan pelal. Te sak bonga. Irbin te agom jabda jab namango. Mas deri ek bae. Laglagam mo map to kala nunam. First of all map ko choda. Okay, secondly, mains pase yogo shin kakuma. Picture pura clear nun ga samne odudo. Nun everything am sendo. Starting hoga nala ela ija nam kya ba. Yo barila illa dadne. Agam naru amnul sengam road को और ngok agam jab na mango yo वो agam हम jab ने और किस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ रहा है और किसके लिए बात कर रहा है क्यों बात कर रहा है अगम नून पूरा नारुए सेंदो को
इजा गोमोइसो मुने पॉलिटिक्स से बाहर रह करके पॉलिटिक्स को चैलेंज करके फायदा नहीं है। पॉलिटिक्स में कुर्सी में पावर में बैठने वाला आदमी लोग को सही काम करो बोल के बाहर से चिल्ला के कोई फायदा नहीं है। अन्ना हजारे भी चिल्ला के थक चुका है, राकेश टिकैत भी चिल्ला के थक चुका है इंडिया में, तो को शीतल भी चिल्ला के थक चुका है बाहर से। इरोम शर्मिला भी 15 साल फास्टिंग बैठ के थक चुका है। ऐसे बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जो समाज के लिए बात करते रहता है, अनशन करते रहता है, धरना करते रहता है, रैली करते रहता है, पद यात्रा करते रहता है, लेकिन सरकार कभी सुनता नहीं है। अगर सरकार से काम करवाना है तो हमको सरकार में रहने वालों को चेंज करना पड़ेगा। चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडियन पब्लिक लोग ही कर सकता है। तो अभी राइट टाइम है, राइट समय है। हर 5 साल का बाद में ये सुनहरा मौका एक बार आता है कि आप अपना डिसीजन दे सके, अपना लीडर को आप चेंज भी कर सकता है, या अगर वो आपको सही लगता है तो आप उसको कंटिन्यूटी रख भी सकता है। तो इस बार 2024 में 19 अप्रैल को हमारे पास वो सुनहरा दिन है जिस दिन हम अपना फैसला कर सकते हैं, अपना चुनाव कर सकते हैं कि हमको कैसा नेता चाहिए, कैसा सिस्टम चाहिए। क्या हम सब अरुणाचल की जनता करप्शन के अंदर रह करके खुश हैं, या थोड़ा बहुत हमें करप्शन से आजादी चाहिए, हमें करप्शन से छुटकारा चाहिए। हर एक चीज में करप्शन, आंगनबाड़ी में करप्शन, आशा हॉस्पिटल का जो आशा स्टाफ है उसका भी करप्शन क्योंकि सैलरी नहीं देता है। उसके बाद में वुमेन वेलफेयर चाइल्ड एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारा करप्शन है। गिनाने लग जाऊंगी तो आज रात भी कम पड़ जाएगा, इतना सारा करप्शन है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में करप्शन है, वाटर डिपार्टमेंट में करप्शन है, रोड कंस्ट्रक्शन PWD बोलिए या कुछ भी बोलिए उसमें भी करप्शन है, RWD में करप्शन है, हर एक चीज में करप्शन है। प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा बनकर आते हैं गांव के लिए, स्टेट के लिए, हर एक प्रोजेक्ट्स में कटौती होती है। वहां से दिल्ली से जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम होता है वो कम से कम 10,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है, लेकिन हमारे गांव में अगर उस पे काम पे लगता है तो 1,000 तो छोड़ दीजिए, 1-2 करोड़ भी बहुत मुश्किल से लगता है। और हमको पुअर क्वालिटी का चीज देते, उसके बाद में फिर हफ्ता 10-15 दिन का बाद में रास्ता भी उखड़ जाता है। तो ऐसा बहुत सारा चीज स्टेट में हो रहा है। इस करप्शन से लड़ने के लिए इस मानव मिल करके, क्योंकि नेता नहीं बनूंगी सोच करके, राजनीति में नहीं जाऊंगी सोच करके, मैं एक समाज की आवाज बन करके समाज के लिए मैंने बहुत आवाज उठाया है। इतना उठाया कि यहाँ से दिल्ली तक पहुंचा और दिल्ली के जंतर मंतर में पूरा 8 महीना धरना दे के बैठा, लेकिन कोई सुनता नहीं है। किसी के पास टाइम नहीं है हमारी दर्द भरी आवाज को सुनने की। उन लोगों के लिए ये फिजूल लगता है, बेकार लगता है, फालतू का टेंशन सोचता है वो लोग, इसको क्या एंटरटेन करना है सोचता है। आज तक अरुणाचल सरकार भी नहीं सुन रहा है, दिल्ली का सरकार तो नहीं सुन रहा है और अरुणाचल सरकार भी नहीं सुन रहा है। तो इसलिए मैं एक उम्मीदवार के रूप में इसलिए खड़ी हुई हूँ कि मेरा अन्य लोग, मेरा अबो लोग, मेरा भाई लोग, मेरा बहन लोग, अगर आप लोगों को लगता है, थोड़ा सा भी लगता है कि तो शीतल जो बोल रही है उसमें सच्चाई है और वो जेन्युइन है, तो आप लोग प्लीज इस बार चलिए हम सब मिल करके अपना लीडर को चेंज करते हैं। शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अगर हम स्टेट के लीडर को चेंज नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम नेशनल लीडर को तो चेंज करते हैं, जिसको हमने 15-20 साल मौका दिया है स्टेट को सेवा करने देने के लिए। लेकिन स्टेट का सेवा वो करता है कि नहीं करता है वो मुझसे बेहतर आप लोग जानता है। आप लोग ज्यादा अच्छा से बता सकते हैं कि वो कितना लेवल में स्टेट का सेवा कर रहा है। इतना तो तय है कि स्टेट का तो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है, बट उनका खुद का प्रोग्रेस और डेवलपमेंट तो बहुत ज्यादा हो गई है। कहाँ कैसे कैसे उस दिन मीडिया में आ रहे थे, गिना रहे थे कि गंगा विलेज में उनको कुछ लोगों ने जमीन गिफ्ट में दिया है बोल के, वो मीडिया में बता रहे थे, जबकि गंगा विलेज में उसका बहुत बड़ा प्लॉट है और बाउंड्री वॉल भी तगड़ा कंस्ट्रक्शन हो रही है। कम से कम करोड़ों की वैल्यू की प्रॉपर्टी है।
कोई भी आदमी आज के देश में करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी को भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता है, वो भी एक नेता को, एक मंत्री को, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को कोई भी फ्री में गिफ्ट नहीं देता है। जनता के विकास के लिए आए हुए पैसों से अपना विकास कर रहे और जनता को बेवकूफ बना रहे, उल्लू बना रहे। आप सब जानते हैं मैं बहुत सारी चीजों को बोल बोल के थक चुकी हूँ। आप लोग सुनते रहते होंगे, शायद मुझे भी सुन सुन के आप लोग भी थक चुके होंगे। फिर भी मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि कहीं पे कुछ बातें अगर छूट गई हो तो आपको फिर से रिमाइंडर दिला दो, याद दिला दो। मैं वही औरत, वही अभागन तो शीतल हूँ जो दिल्ली के सड़कों पे रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन अपना नेता वहां होते हुए भी किसी ने मुझे नहीं सुना, किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि मुझे भूख लगी थी, मैं इसलिए नहीं रो रही थी कि मुझे कपड़ा चाहिए था, इसलिए नहीं रो रही थी कि मुझे अमीर होना है। मैं इसलिए रो रही थी कि हमारे सिस्टम को ठीक कीजिए, हमारे सिस्टम में हो रहे करप्शन को ठीक कीजिए। थोड़ा सा भी हो सके तो करप्शन को थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस कीजिए। हमारे बच्चों की नौकरियों को मत खाइएगा, हमारे महिलाओं के साथ जो सितम हो रही है उसको थोड़ा कम कीजिएगा, हमारे स्टेट को बचा लीजिएगा। मैं इसलिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी हुंकार उन्होंने सुनना भी जरूरी नहीं समझा। खैर मुझे तो छोड़ ही दीजिए, मुझे सुना नहीं, लेकिन बाद में जब यहाँ से अरुणाचल से कुछ माताओं ने इरादा किया कि मेरे सपोर्ट में वो लोग आएंगे, चलेंगे और वहां पर मुझे समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पे आकर वो लोग मेरे साथ धरना देने के लिए आए थे, तो उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई दिल्ली में वो आप सब ने देखा हुआ है। आप सब ने, बहुत सारे लोगों ने आंसू भी बहाए होंगे, साथ में रोए भी होंगे। एक मजाक बना के रख दिया वहां महिलाओं का। दिल्ली के पुलिस ने इतना बदसलूकी किया। वैसे भी हमारे अम्माएं माताएं तो इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं और उनको कोई एक्सपोजर नहीं है, बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं है। यहाँ से जोश में, गुस्से में, आक्रोश में चल दिया ताकि हमारा एक अरुणाचल का एक महिला वहाँ अकेला लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो हम लोग को भी साथ में जाके उसका सपोर्ट करना चाहिए सोचकर महिलाएं वहां पर आए थे। लेकिन उन महिलाओं के साथ क्या किया, ट्रेन स्टेशन में उनको ही डिटेन करके रख दिया और उनके लिए जो टेंट में तैयार कर रही थी टेंट को तोड़ दिया, बेघर कर दिया। उसके बाद भी इतना तकलीफ देने के बाद भी उन लोगों का दिल नहीं भरा कि ट्रेन स्टेशन में उसको बंद करके रखा, दिन भर भूखा प्यासा रखा। जो सब्जी जो यहाँ से अपिन सब्जी जो मेरे लिए वो लोग लेकर आए थे उसको वहां रेल स्टेशन में बैठ के कच्चा चबाने लग गए। तो इतना सितम, इतना तकलीफ देने वाले इस सरकार में रहने वाले लोगों से क्या आप लोग अभी भी खुश हैं क्या? मैं सिर्फ आप लोगों से ये पूछने के लिए आई हूँ। अगर आप लोग मेरी तरह खुश नहीं है, ना खुश है, तो चलिए इस मुहिम में हम लोग एक साथ जुड़ते हैं। ये आज का मॉडर्न वार है। मॉडर्न वार में बंदूक या तलवार काम नहीं करता है। मॉडर्न वार में सिर्फ और सिर्फ ईवीएम मशीन काम कर रहा है। आप अपना फैसला ईवीएम मशीन में दे सकते हो। आप बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। उस पर कोई फोर्स आपको नहीं कर सकता है। कोई पैसा देकर के आपका मन नहीं लुभा सकता है। कोई आपको बंदूक के नोक पर नहीं डरा सकता है। कोई रिश्ता नाता का वास्ता देकर के आपको बात नहीं कर सकता है। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मेरी स्टैंड हमेशा से क्लियर रही है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसके सारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशंस और मैनिफेस्टोस, उसके आइडियोलॉजीज और उसके जो भी एम ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमेशा जनता के हित के लिए होते हैं। लेकिन उसमें रहने वाले लोग, पार्टी में लीडर बन के रहने वाले लोग, अगर एक लीडर का दिमाग में जंक लग जाता है तो वो वायरस सब में फैल जाता है, जिसका चलते पार्टी खामखा बदनाम होता है। इसलिए मेरे नजरों में किसी पार्टी को मैं गलत नहीं कहती हूँ और किसी पार्टी को मैं समर्थन या किसी पार्टी को विरोध नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को विरोध कर रही हूँ। सिस्टम में हो रहे अत्याचार को विरोध कर रही हूँ। सिस्टम में हो रहे भ्रष्टाचार को विरोध कर रही हूँ। इसलिए आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि प्लीज पार्टीबाजी मत देखिए। कोई भी हो पार्टीबाजी मत देखिए। आप कैंडिडेट का डिटर्मिनेशन को देखिए और कैंडिडेट के अंदर कितनी काबिलियत है उसको आप लोग क्रॉस वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए। अगर आपको लगेगा, आपके मन से लगेगा कि नहीं यही कैंडिडेट हमारे लिए सही है,
तो आप उस कैंडिडेट का समर्थन कर सकते हैं। अगर आपके नजरों में लगता है कि मैं शीतल आप लोगों के लायक नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ, तो मुझे साथ मत दीजिएगा। लेकिन अगर आपको जरा सा भी लगेगा कि हमारी शीतल हमारे लिए है, हम शीतल पे भरोसा कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे तो जरूर मेरा समर्थन कीजिएगा, मुझे साथ दीजिएगा और मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के अंदर भेजिएगा। 19 अप्रैल को अपना डिसीजन दीजिएगा और मुझे पार्लियामेंट हाउस के अंदर घुसाकर मेरा अधूरा काम जो रह गया है, दिल्ली के सड़कों पर जो काम मैं कर रही थी, वो मैं अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर से करना चाहती हूँ। तो वो मुझे करने में आप लोगों का समर्थन चाहिए। बस इसी अपील और इसी शॉर्ट प्रेयर के साथ मैं आप लोगों के बीच में आई थी और ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, क्योंकि वहाँ लिरोमोवा में फिर मेरा इंतजार हो रहा है, वहाँ अभी फिर मुझे पहुँचना है। उसके बाद कल मुझे दुमपुरी जो अपर सुबनसिरी पहुँचना है, समय बहुत कम है। उसके बाद फिर मुझे अपर सुबनसिरी कवर करने के बाद फिर कमले लोअर सुबनसिरी कई पंजर होके फिर बोमदिला तवांग का तरफ भी जाना है, वहाँ पके के संग पपुम परे में भी पहुंचना है। मतलब इतना ज्यादा एरिया है कि मैं अकेली और हर जगह लोग मुझे देखना चाहते हैं। वोट देंगे नहीं देंगे वो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सामने से देखना चाहते हैं। तो इसलिए सामने से मिलने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए, मिलवाने के लिए मुझे किसी भी सूरत में वहाँ पहुंचना है। इसलिए मेरा ngoga chili bam soga an ajin tulu an gade abogade nunam naru am request nake ngo au sitel ngo berengo bermanun ga awe an ngo request nake please nune anyi gosil nun opuke agar ऐसा लगता है कि ngo awe ngo bere hi kam sam illare illare mad nolokam nunna naru a blessing am jiaka ngo ke election symbol torch light ela agam nun 19 April am voting polling booth olo ala ela nunna मेकर गदला ngo serial number 3 है दो पे ना है, serial number 1 है किरण जी दो पे, 2 है तुकी सार दो पे, 3 है ngo अमीने दो पे। अगर EVM machine वालों कापा वालों कम नुने आया मरे मैं कम बहुत हम तुबले दिया खलाई ngo request ना। Thank you so much। ओके ngo मेंस काकमा ओके चंपा दीदी नाम ngo request ना ngoga ane party itna sekir में भी इकराम सिंह बर्दाश्त लांगुनम पोनु इरक जिनबम नो अनीगो हमारा मरकातो योग जिसका मां अमलासी जस्ट माने गिव एंड टेक, प्यार यहाँ से भी लेना है, प्यार आपका तरफ से भी देना है। ये तो एक बहाना है, कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है, इट्स नथिंग। लेकिन एक दूसरे को प्यार को आदान प्रदान करने से रिलेशन और क्लोज होता है। इसलिए आप लोगों से मुझे प्यार और प्रार्थना सपोर्ट चाहिए। और यहाँ में मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ, हमेशा से मेरा स्टैंड आप लोग देखिएगा, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार नहीं करती हूँ, किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध भी नहीं करती हूँ। मेरे लिए पार्टी कोई खराब नहीं है, पार्टी का कैंडिडेट का डिटर्मिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो वो देखिएगा। एंड स्पेशली ये मैं अपने लिए अपील करने आई थी। बाकी असेंबली इलेक्शन आप लोगों का चल रहा है, आप लोग जिसको जो सपोर्ट करता है उसको दीजिए, उसमें मैं बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा करना भी सही नहीं है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट।